Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today's topic is 6.3 Pointer Arithmetic. Learning Outcomes. After watching this video, you will be able to list operations performed on pointers and develop program using arithmetic operations using pointers. Course outcome that is going to map by this unit is CO6. Develop C programs using pointers, and program outcomes those are going to satisfy by this video are PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools experimentation and testing, PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know the basic data types, control structure of C language, and you should know pointer declaration and what is null pointer. Pointer arithmetic. A pointer in C is an address which is a numeric value. पॉइंटर का हम यूज इसलिए करते हैं कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वैल्यू. ओके, किसी और दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल को यूज करते हैं. और जो भी इसमें एड्रेसेस होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है. देयरफॉर वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन अ पॉइंटर जस्ट एज यू कैन ऑन न्यूमेरिक वैल्यू. जैसे ही हम न्यूमेरिक वैल्यूज पे नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो same operation we can perform on pointers also. Following our arithmetic operations are possible on the pointer in C language. So we can perform all these operations on pointers. Incrementing pointer, decrementing pointer. Here increment means plus plus and minus minus operator. Addition means plus. Subtraction means subtracting minus, and we can compare the values of pointers also, means comparison operation. So these operations we can perform on pointers. Now we can take examples like star pointer 1 and pointer 2. These are two pointer variables, and star indicates value at that particular address. Means इस pointer, ये जो pointer variable है इसके अंदर जो भी value है उसकी value plus pointer 2 की जो value है उसकी value. Okay. सिंपली अगर हम ptr2 ये वेरिएबल लेंगे, ptr1 ये वेरिएबल लेंगे, तो इसमें किसी ना किसी का एड्रेस स्टोर होगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लगाती हूँ एड्रेस ऑफ, एड्रेस एट द, है ना, एड्रेस एट द, वैल्यू एट द, इसको हम बोलेंगे वैल्यू एट द ऑपरेटर. सो ये प्रिंट करेगा कि उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है वो. ओके, सो जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे. मीन सिंपल वी आर परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन ऑफ पॉइंटर्स like this. We can multiply values of two pointers, then we can add values of two pointers, and we can subtract value of other pointers also. So these operations like this we can perform. Then again this p1 means what is this address. Okay, and star p1 suppose मैं अगर लिखती हूँ तो value at that address हो जाएगा. लेकिन मैं p1 लिखती हूँ और उसमें +10 करती हूँ, so this is again is possible. ओके, p2 -5 ये भी करती हूँ, so again this is possible. तो इस तरह से भी हम operations perform कर सकते हैं on pointer variable. So these operations we are going to see in next videos. Okay, so while performing division, make sure that you put a blank space between the slash and star of the pointer, as together it would make a multi-line comment. अगर हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लाइक दिस, स्टार ptr a मीन्स दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल डिवाइड बाय डिफरेंट पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल a एंड पॉइंटर वेरिएबल b. इन दोनों के ऊपर मैं डिवीजन का ऑपरेशन अगर परफॉर्म करती हूँ, ओके, तो मैं इनको ऐसे साथ साथ में नहीं लिख सकती. स्लैश और स्टार को मैं साथ में नहीं लिख सकती, क्योंकि अगर मैं स्टार और स्लैश को साथ में लिखती हूँ तो ये हमें कमेंट लिखने के लिए काम में आता है ये ऑपरेटर हमको. ओके, हम जब भी हमको मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना है तो इसका हम यूज करते हैं साथ में स्लैश और स्टार का. सो ये इनकरेक्ट है.
दिस इज इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। तो अगर हमको पॉइंटर ए डिवाइडेड बाय पॉइंटर बी एक्सप्रेशन लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, पॉइंटर ए स्पेस स्लैश, मीन्स यहाँ पे स्पेस नहीं दिया तो चलेगा, बट स्लैश के बाद में स्पेस देना जरूरी है ताकि ये उससे सेपरेट हो जाए, ये जो एस्ट्रिक है स्टार ये सेपरेट हो जाए। ओके, सो दिस इज करेक्ट एक्सप्रेशन एंड अगेन वी कैन, बेस्ट वे इज वी कैन पुट इट इन ब्रैकेट सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। सो दिस इज द करेक्ट वे, बट अगर इसको हम साथ में लेते हैं ये दो ऑपरेटर, सो दिस इज इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। सो ऑलवेज वी हैव टू कीप इन माइंड while writing such type of expressions. Now let us see one example. So मैंने यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड की है, दैट इज stdio.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड की है। मेन फंक्शन लिया है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें एक वेरिएबल लिया है इंटीजर वेरिएबल a, उसमें 20 वैल्यू असाइन की है, एंड b वैल्यू लिया है, b वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने 10 वैल्यू इनिशियलाइज की है। So a is containing 20 and b is containing 10 value। और मैंने फिर से, मुझे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और उनका रिजल्ट स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, इंटीजर टाइप के लिए हैं, ऐड, सब, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड। सो दीज आर द वेरिएबल्स टू स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेशन। नाउ a का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है ptra, एंड b का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने दूसरा एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है ptrb। सो एम्परसेंट ऑफ a इक्वल्स टू ptr ऑफ a, a का जो एड्रेस है वो हमने ptra में स्टोर किया है एंड b का जो एड्रेस है वो हमने ptrb में स्टोर किया है। सो ptra एंड ptrb में a और b का एड्रेस स्टोर है। अब हमको एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो हम एड्रेसेस को तो ऐड नहीं कर सकते, बट उस एड्रेसेस के अंदर जो वैल्यू है उनको हम ऐड कर सकते हैं। ओके, वी कैन गेट द वैल्यू प्रेजेंट एट दैट एड्रेस। उस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उस वैल्यू के ऊपर हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस। सो स्टार ऑफ ptra, ओके, ptra में किसका एड्रेस है, a का, तो जो a का एड्रेस है वही एड्रेस ptra में है, और ptra में जो एड्रेस है उसमें क्या वैल्यू स्टोर है, a वैल्यू स्टोर। ओके, ptra के अंदर जो एड्रेस है उसमें क्या वैल्यू स्टोर है, 20 वैल्यू स्टोर है, a की वैल्यू स्टोर है। सो अगर मैं स्टार ptra लिखती हूँ इसका मतलब ptra के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू तो है 20। देन ptrb मीन्स ptrb में जिसका भी एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू। सो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 10। सो हमको यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी, प्रिंट एफ एडिशन, इंटीजर में चल रहा है सभी ऑपरेशन, इस इक्वल टू मैंने परसेंट दे दिया है, एंड ऐड, ऐड में अब क्या रिजल्ट प्रिंट होगा मेरा, 20 प्लस 10 दैट इज 30। तो ये ऑपरेशन मुझे 30 रिजल्ट देगी। देन नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सॉरी सब्ट्रैक्शन वेरिएबल, सब्ट्रैक्ट करना है हमको। सो सेम यहाँ पे कि ptra में जिसका भी एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है 20 माइनस ptrb में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको माइनस कर दो। सो 20 माइनस 10, तो हमको अगर हम सब वेरिएबल को यहाँ को प्रिंट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 20 माइनस 10 दैट इज 10 आउटपुट मिल जाएगा। देन सेम हम मल्टीप्लीकेशन करते तो यहाँ पे 20 इंटू 10 200 मिलेगा। अगर वेरिएबल को मैं प्रिंट करती हूँ तो डिवीजन वेरिएबल को प्रिंट करती हूँ तो 20 डिवाइडेड बाय 10 मुझे यहाँ पे 2 आंसर मिलेगा। एंड मॉड को अगर मैं प्रिंट करती हूँ यहाँ पे सो 20 मॉड 10। सो मॉड ऑपरेटर जो है वो डिवीजन का रिजल्ट नहीं स्टोर करता है, मॉड ऑपरेशन हमेशा जो भी रिमाइंडर होता है वो एज अ रिजल्ट हमको डिस्प्ले करता है। सो अगर मैं 20 डिवाइडेड बाय 10 करूंगी तो मुझे आंसर तो मिल जाएगा 2, लेकिन मेरा रिमाइंडर क्या है, 0 मिलेगा मुझे रिमाइंडर। सो मॉड में 0 ये वैल्यू स्टोर होगी, तो मुझे इसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा 0। तो इस तरह से हम पॉइंटर्स के अंदर जो वैल्यू है, ओके, तो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है और उस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उस
वैल्यू को इस तरह से हम उस वैल्यू के ऊपर इस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर हम आउटपुट देखेंगे तो हमको इस तरह से मिलेगा 20 + 10 30, 20 - 10 10, 20 × 10 200, 20 divided by 2 20 divided by 10 2 and 20 modulo 10, सो रिमाइंडर मिलेगा मुझे 0। तो इस तरह से मुझे आउटपुट मिलेगा। देन हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। सो पॉइंटर्स के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है उन वैल्यूज के ऊपर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वो ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। तो स्टार ऑफ पॉइंटर 1 मीन्स ptr1 के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन ptr2 के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हम डायरेक्ट उस पॉइंटर के ऊपर स्टार लगा के वो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज ए में 20 वैल्यू है, बी में 10 वैल्यू है, ptr a ptr b नाम के दो पॉइंटर वेरिएबल्स लिए हैं मैंने, एंड ए का एड्रेस ptr a में, बी का एड्रेस ptr b में मैंने स्टोर किया। तो इनको हम किस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे? सिंपल है, जैसे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया था सेम उसी तरीके से भी। सिर्फ हमको ये करना है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है हम हमेशा कंडीशंस के साथ यूज करते हैं। ओके, कंडीशंस के साथ क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो आइदर 0 या 1, फॉल्स या ट्रू, ये हमको रिजल्ट देते हैं, इसलिए इफ कंडीशन के साथ हम इनको यूज करेंगे। सो इफ पॉइंटर ए के अंदर जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन पॉइंटर बी के अंदर जो वैल्यू है, पॉइंटर ये वैल्यू इफ लेस देन दिस वैल्यू। ओके, सो हम प्रिंट करेंगे कि इज लेस देन दिस वैल्यू एंड पॉइंटर ए एंड पॉइंटर बी को प्रिंट करेंगे। ओके, देन इस तरह से हम ग्रेटर देन की कंडीशन भी ये कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, और फिर रिजल्ट इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। देन इक्वल टू ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। मीन्स पॉइंटर ए के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो वैल्यू इक्वल टू पॉइंटर बी के अंदर की वैल्यू है क्या? अगर ये दोनों वैल्यू अगर सेम है तो हमको मिलेगा रिजल्ट 0, और अगर डिफरेंट है तो हमको मिलेगा रिजल्ट 1। ओके, दैट इज डिपेंड ऑन ट्रू और फॉल्स कंडीशन। तो इस तरह से इफ कंडीशन के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं विथ पॉइंटर्स। So let us summarize today's lecture. Today we have studied what are operations performed on pointers, and we have seen simple program for arithmetic expressions using pointers. So dear students, I hope you might have understood today's video. Thank you for watching the video. Keep learning and enjoying.